Good morning, students. We are doing chapter motion. So in previous lecture, we have discussed about distance time graph. Distance time graph, or we can say displacement time graph. So we have learnt about ST graph. ST graph is also known as distance time graph. Distance time graph or displacement time graph. So three type of graph we have already discussed. When the object is at rest, when object is at rest means it is not moving. The displacement or the distance from a fixed point means from the reference point is constant, means fixed. Say from the origin or the reference point, the object is at 4 meters, or we can say 3 meter, 2 meter. So after 2 seconds, after 3 seconds, after 4 seconds, after 5 seconds, the distance remains constant. Distance क्या हमारा constant है, fixed है. तो ये किस तरह का ग्राफ रहेगा हमारे पास रेस्ट के लिए. So students, we have discussed about the graph about the object at rest for uniform motion and non-uniform motion. So graph for the rest uniform. So distance time graph, when the object is at rest, it is a straight line parallel to the time axis. On x-axis we are taking time, on y-axis we are taking distance और displacement. ये आपको अच्छे से याद रखना है कि टाइम एक्सिस कौन सी रहेगी हमारी एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस में हमारे पास क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. सो विच टाइप ऑफ ग्राफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. इफ एनी ग्राफ, एनी डिस्टेंस टाइम ग्राफ is a parallel line to the time axis, then it is at rest. Object will be at rest. Then we have discussed about graph for uniform motion. Uniform motion means equal distance traveled in equal interval of time. Equal distance traveled in equal interval of time. The graph will be a straight line. It will be a straight line inclined with the time axis. Inclined with the time axis. Inclined means it is having some angle with the time axis. Time axis से कुछ एंगल बनाएगी, ठीक है. तो जब ये टाइम एक्सिस के साथ ऐसे इंक्लाइंड होगी, ऐसे झुकी हुई होगी, तो वो कौन सा ग्राफ रहेगा हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन के लिए. इट इज अ स्ट्रेट लाइन बट ये रेस्ट के लिए है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी स्ट्रेट लाइन बट इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस. टाइम एक्सिस के साथ ये क्या होगा, इंक्लाइंड होगा. देन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होगा, इट विल बी अ कर्व्ड लाइन और एनी जिगजैग लाइन, बट इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन नहीं होगा. स्ट्रेट लाइन को छोड़ के कर्व हो सकता है, जिगजैग हो सकता है, किसी भी टाइप का ग्राफ हो सकता है, बट स्ट्रेट लाइन नहीं होगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए. तो दीज ग्राफ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ. सो स्टूडेंट, आवर टुडेज टॉपिक इज स्पीड टाइम ग्राफ, और वी कैन से वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वीटी ग्राफ. तो स्पीड टाइम ग्राफ हम कहें या वेलोसिटी टाइम ग्राफ या वीटी ग्राफ, एक ही बात रहेगी. तो इसके लिए हम एक्सिस किस तरह से चूज करेंगे. जो हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस वी विल टेक फॉर टाइम. टाइम विल बी टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस. टाइम विल बी टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस. और जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम क्या कंसीडर करेंगे, स्पीड और वी कैन से वेलोसिटी. स्पीड और वेलोसिटी. स्पीड और वेलोसिटी. Speed or velocity. It will be represented by v. It will be represented by v, and the time will be represented by t. Again, I am repeating. X-axis will be taken for time, and y-axis will be taken for speed or velocity. We can write with the symbol v. So the first case is when speed remains constant. Speed remains constant means object is moving with uniform speed. Uniform speed. There is no change. Object is moving with a particular speed. Suppose करो कोई भी, suppose करो हमारे पास एक कार है. It is moving with 40 km per hour. 40 km per hour regularly. After 1 hour, it is moving with 40 km per hour. After 2 hours, it is moving with 40 km per hour. So इस तरह की जो स्पीड है उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड. तो जब कोई भी स्पीड चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी, तो कैसा केस रहेगा, नो एक्सेलरेशन. देयर विल बी नो एक्सेलरेशन. सो लेट्स डिस्कस अबाउट which type of graph it will be. So
along the x-axis we will take time. So time will be taken along the x-axis. Velocity or speed will be taken along the y-axis. So along the x-axis we will take time. Along the y-axis we will take velocity. This is our reference point or origin. Okay, origin या reference point. So if object is moving initially with some speed, हम एग्जांपल लेते हैं. सपोज ऑब्जेक्ट इज मूविंग, तो हियर वी कैन कंसीडर स्पीड एंड हियर वी कैन टेक टाइम. तो सपोज करो टाइम को, वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में कंसीडर कर रहे हैं और टाइम को हम सेकंड्स के अंदर कंसीडर करेंगे. तो कोई एक एग्जांपल हम लेते हैं. लेट आफ्टर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, आफ्टर 4 सेकंड. ठीक है. लेट वेलोसिटी इज 2 meter per second. After 2 seconds, it is 2 meter per second. After 3 seconds, it is 2 meter per second. After 4 seconds, it is 2 meter per second. 2 meter per second. So object is moving with constant speed or uniform speed or constant velocity. So here we can write time 1, 2, 3, 4. All these quantity are in second. So we can take velocity here 1, 2, 3. 1 meter per second, 2 meter per second, 3 meter per second. So object is initially moving with 2 meter per second. After 1 second it is 2 meter per second. After 2 seconds it is 2 meter per second. After 3 seconds it is 2 meter per second. After 4 seconds it is 2 meter per second. So which type of graph it will be? It will be a straight line. It will be a straight line. Straight line to which? It will be a straight line पैरेलल टू टाइम एक्सिस. जिस तरह से हमारे पास रेस्ट के लिए किसमें आता, स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ आया था, उसी तरह का ग्राफ हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. बट ये रेस्ट के लिए नहीं है बेटा. यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि जी जब इस तरह की स्ट्रेट लाइन थी, क्योंकि देखिए ये ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है ये 9th क्लास के लिए बिल्कुल न्यू है. इसको बड़े गहराई से आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा. सिर्फ शेप देख के हमारा काम नहीं चलेगा. हमने साथ के साथ क्वांटिटी भी देखनी है. यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस और टाइम है, यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम और स्पीड एंड टाइम. ये बार बार मैं क्वांटिटी चेंज करता रहूंगा. स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात है जब ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है बेटा. तो लुक एट द शेप ऑफ द ग्राफ. शेप ऑफ द ग्राफ इज सिमिलर. शेप ऑफ द ग्राफ इज सिमिलर. सिमिलर है बट अलग अलग क्वांटिटी हमने ली हुई है. यहाँ पे है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ और ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है. ये बेसिक डिफरेंस यहाँ पे आप देखिएगा. तो इट विल बी ए पैरेलल लाइन, सॉरी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. तो क्या लिखेंगे बेटा हम यहाँ पे? तो जब इस तरह से ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो क्या रहेगा यहाँ पे हमारे पास? इट विल बी ए, तो व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ? स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट. स्पीड इज कांस्टेंट. ये फर्स्ट केस के लिए हमारे पास है when speed is constant. So it will be a straight line. लिखेंगे VT graph is a straight line. VT graph is a straight line parallel to time axis. Parallel to time axis. कौन सी कंडीशन के लिए? When speed remains constant. When speed remains constant. So we can say like this: if VT graph is a straight line parallel to time axis, then speed of the object is constant. Then speed of the object is constant. Or we can say when speed remains constant, VT graph is a straight line parallel to time axis. It is a straight line parallel to time axis. So now let's consider the second case. When speed changes at uniform rate. Speed changes at uniform rate. Speed changes at uniform rate. So which type of graph it will be? So we will consider the two cases when uniform motion acceleration means speed changes at uniform rate. Equal velocity changes with equal interval of time. Or equal speed changes in equal interval of time. That is the case of uniform acceleration. Uniform acceleration. Uniform speed and uniform acceleration बेटा different है. बड़े ध्यान पे आपने देखना है. यूनिफॉर्म स्पीड में कोई भी स्पीड चेंज नहीं होती. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में स्पीड चेंज होगी,
बट एट यूनिफॉर्म रेट, ठीक है, इक्वल इक्वल अमाउंट में चेंज होगी। तो वहां पे दो केस हो सकते हैं, इनिशियल स्पीड इज 0, ऑब्जेक्ट रेस्ट से चले, ठीक है, रेस्ट से चले, सपोज करो 2 किलोमीटर पर आवर, देन 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर, इस तरह से इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म रेट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, स्पीड इज चेंजेस इंक्रीजेज विद यूनिफॉर्म रेट। या हम कहेंगे इनिशियल स्पीड नॉट 0, जब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो इनिशियली किसी स्पीड से चल रहा था, ठीक है, और फिर हम उस केस को कंसिडर करें, तो दो केसेस में हम कंसिडर करेंगे। तो लेट्स टेक फर्स्ट केस, व्हेन इनिशियल स्पीड इज 0, और ये कौन सा केस हम ले रहे हैं बेटा, दिस केस, व्हेन स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, व्हेन स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। So again we will draw time axis along the x-axis and velocity or speed along the y-axis. Okay, so initial speed is 0. Initially the object is at rest. Initially the object is at rest. Again draw a table. Table हम draw करेंगे. Let velocity is meter per second, given in meter per second, and time is given in second. So initial velocity at time 0, at time is equal to 0, initial velocity is 0. After 1 second, velocity is 2 meter per second. After 2 seconds, velocity is 4 meter per second. After 3 seconds, velocity is 6 meter per second. ठीक है, and so on. So look at the table carefully. Equal time interval में जो है वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज होती है, 2 मीटर पर सेकंड, अगेन 2 मीटर पर सेकंड, अगेन 2 मीटर पर सेकंड, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन स्पीड इज 2 मीटर पर सेकंड, एंड इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम इज चेंजेस, 1 सेकंड, देन 1 सेकंड, देन 1 सेकंड। सो विच टाइप ऑफ मोशन इज दिस, यूनिफॉर्म रेट, चेंज इन स्पीड यूनिफॉर्म रेट, चेंज इन स्पीड यूनिफॉर्म रेट मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। So draw this graph. So you can draw this graph. After 0 second, object is at 0. ठीक है, initially 0. After 1 second, object is at 2 meter per second. After 2, 3 or 4 second. After 2 second, it is at 4 meter per second. After 3 second, it is at 6 meter per second. So we can draw this graph. When object initially at rest, it is at origin, at reference point. After 1 second, it is at 2 meter. After 2, it is at 4 meter, moving with 4 meter. After 3 seconds, it is moving with 6 meter per second, and so on. When we join these points, it will be a straight line. Again, it will be a straight line, but inclined with time axis. Again, look at carefully. Some of the student will compare this graph with this graph. Both are different. ध्यान से देखिएगा बेटा, ये है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन के लिए, और जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम गिवन है, ये है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, जब हमारे पास स्पीड इंक्रीज हो रही है, बट इंक्रीज इन स्पीड इज यूनिफॉर्म, ठीक है, इक्वल अमाउंट में वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह का ग्राफ हमारे पास आएगा। तो इस ग्राफ की शेप कैसी रहेगी, वीटी ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन inclined with time axis, टाइम एक्सिस का अर्थ क्या है, inclined with time axis. तो क्लियर स्टूडेंट, तो बिल्कुल यूनिफॉर्म रेट पे क्या चेंज हो रही है, स्पीड हमारे पास चेंज होती है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। बट कौन सा केस हम कंसीडर कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0, देखिएगा इनिशियल वेलोसिटी इज 0, बट द सेकंड केस इज व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0। इसी में ये हमारा फर्स्ट केस है, इसी का जो सेकंड केस अगर हम कंसीडर करें, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी is not 0,
जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, तब किस तरह का ग्राफ हमारे पास आएगा? तो अगेन वी विल ड्रॉ टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस पे होगा हमारे पास, वेलोसिटी कहाँ पे होगा? वाई एक्सिस पे। तो इस तरह से हम कंसीडर कर सकते हैं कि भी जब हमने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, लेट इट इज हैविंग वेलोसिटी u। आफ्टर 1 सेकेंड और आफ्टर 2 सेकेंड और आफ्टर 3 सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड, तो आई एम ऑब्जर्विंग अ कार, एक कार को मैंने ऑब्जर्व किया, और जब वो मैंने ऑब्जर्व किया वो ऑलरेडी मोशन के अंदर थी, इट इज मूविंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी, लाइक इट इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड। सो 2 मीटर पर सेकेंड से वो पहले से ही मूव कर रही थी, तो यहां से हम उसको स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद मोशन कैसा है? चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म रेट से वो क्या कर रही है? चेंज कर रही है। तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ विल बी, ठीक है, तो इट विल बी ए straight line inclined with the time axis, inclined with time axis, but initial velocity is not zero, initial velocity is not zero। तो इसके लिए भी यही स्टेटमेंट हम लिखेंगे, same vt graph is a straight line is inclined with the time axis, it is also inclined with time axis, but initial velocity is not zero। अगर initial velocity zero है तो ये जो रेफरेंस पॉइंट हमारा, ये जो ग्राफ की जो लाइन है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगी, और अगर इनिशियल वेलोसिटी गिवन है तो वो जितनी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है वहां से स्टार्ट होगी। सेम स्टेटमेंट हम लिखेंगे, वीटी ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस। तो स्टूडेंट, दिस इज द केस व्हेन स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। ओके, so this is the graph when initial velocity is zero and initial velocity is not zero। So now the third case is, so let's discuss about the third case। Third case is when speed changes at non-uniform rate, speed changes at non-uniform rate means non-uniform acceleration, non-uniform acceleration, non-uniform acceleration। So what is non-uniform acceleration? बेटा जो डेफिनेशन हमने की हुई है वो डेफिनेशन बिल्कुल आपको याद रखनी है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? व्हेन चेंज इन स्पीड, unequal amount of speed changes और unequal amount of velocity changes with time, ठीक है, तो जब अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के साथ साथ, तो वो किस तरह का होता है भाई? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वो केस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा हमारे पास? इट विल बी ए कार्व्ड लाइन, इट विल बी ए कार्व्ड लाइन, ठीक है। जिस तरह से हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में ग्राफ ड्रॉ किया था, बिल्कुल सेम इसमें रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे? टाइम, एयर वी विल टेक वेलोसिटी और स्पीड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे VT graph is a curved line, VT graph is a curved line when speed changes at non-uniform rate, when speed changes at non-uniform rate। So student, you can take the screenshot of this। When object is moving or speed changes at a non-uniform rate, the case is of non-uniform acceleration। This is the case of non-uniform acceleration। VT graph is a curved line, or we can say that it will not be a straight line, it will be a zigzag line or any type of line, but it will not be a straight line, it will be curved or any type of graph it can be, but it will not be a straight line। Okay student, so one important topic we are going to discuss, okay, so this is a very new topic for you। I am discussing about slope। What is the slope? okay, सबसे पहले स्लोप के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये स्लोप वर्ड जो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ किया है मैं वहां पे भी इसको यूज करने वाला हूं, और ये जो आगे का जो ग्राफ हमने डिस्कस करना है उसके बारे में भी ये स्लोप जो है वो बार बार यूज होगा। मैथमेटिकली पहले इसको समझते हैं स्लोप होती क्या है। सपोज करो वी आर हैविंग, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर
वाई एक्सिस, और कोई भी सरफेस हम ले सकते हैं, ठीक है। so this line is inclined with x axis, this line is inclined with x axis, ठीक है। if I am drawing a perpendicular from this point, like this is A, and again a perpendicular on y axis, like this is B, and this is O. so what is the slope of this graph? what is the slope of this graph? स्लोप को अगर हम सिंपली कहें, स्लोप बेटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। एक तो सिंपली हम इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। तो हियर परपेंडिकुलर इज AC, तो व्हाट इज परपेंडिकुलर? AC, AC is equal to OB, okay, and what is base? OA, what is base? OA। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस अगर मैथमेटिकली इस तरह से हम कैलकुलेट करते तो वो किसकी वैल्यू देता? हमें स्लोप की वैल्यू देता, ठीक है। तो स्लोप का मीनिंग ये है कि ये जो है लाइन हमारे पास OC, वो एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइंड है, कितना इंक्लाइंड है। तो इसकी अगर स्लोप की वैल्यू हमने निकालनी है तो मैथमेटिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है, दिस वैल्यू डिवाइड बाय बेस। और अगर हम यहाँ से बिल्कुल एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देखिएगा AC किसके इक्वल होगा भाई? OB के इक्वल होगा, ठीक है। तो दिस इज स्मॉल टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस स्लोप वर्ड आई एम रिपीटिंग frequently when I will discuss about distance time graph or velocity time graph. So this word will comes again and again, slope। तो ये स्लोप वर्ड को आपने अच्छे से मेमोराइज करना है कि जब भी हमें किसी गिवन ग्राफ से स्लोप निकालनी है तो वहां पे जितना हमारे पास परपेंडिकुलर वैल्यू है डिवाइड बाय अगर बेस हम कर दें तो वहां से क्या आ जाता है? हमारे पास स्लोप आ जाती है, ठीक है बेटा। तो अगर मैं इसी ग्राफ की बात करूं तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर वैल्यू? AC, और AC किसके इक्वल है? OB के भी इक्वल है, ठीक है। तो AC की जगह पे मैं OB भी लिख सकता हूँ, OB डिवाइड बाय OA, एंड व्हाट इज द बेस? दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखते भी होंगे जो पाइथागोरस थ्योरम आप लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं? बेस लेते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास? हाइपोटेनस। ये होता है जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे होते हैं। ये भी हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल ही है, ठीक है। ये कोई एंगल है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस। और अगर AC से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो वो y एक्सिस को B पे कट करेगा, OB और AC की वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी। तो अगर इस ग्राफ से मुझे स्लोप फाइंड आउट करनी है तो क्या करूंगा मैं? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, मींस AC डिवाइड बाय OA, और AC इज इक्वल टू OB, तो मैं दूसरी वैल्यू भी रख सकता हूं। तो ये क्या आएंगे हमारे पास? स्लोप, ठीक है बेटा। तो स्लोप जब भी हमने कैलकुलेट करना है तो इस मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो स्टूडेंट, I am going to unmute to all. So if you are having any doubt, you can ask your question one by one. Otherwise, I will ask some question. Okay. So Sanjay sir, please unmute all the students. Sanjay sir, please unmute all the students. Sanjay sir, Sanjay sir, unmute the students. Sanjay sir, can you hear me? Sanjay sir,
Sanjay sir, unmute the student.